ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PSCB ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ PSCB ਕਲਰਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਇਜ਼ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਐਜ਼ ਵਰਲਡ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੇ। ਵਰਲਡ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ ਇਨੋਵੇਟ ਫॉर ਅ ਗ੍ਰੀਨ ਫਿਊਚਰ। ਇਨੋਵੇਟ ਫॉर ਅ ਗ੍ਰੀਨ ਫਿਊਚਰ। ਵਰਲਡ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਇਨੋਵੇਟ ਫॉर ਅ ਗ੍ਰੀਨ ਫਿਊਚਰ। ਵਰਲਡ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਡੈਰਨ ਟੈਂਗ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਰਨੋਬਿਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਰਨੋਬਿਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ। ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ 1986 ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਨੂੰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀਕ। ਵਰਲਡ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀਕ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ। WHO ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਲਡ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀਕ। ਵਰਲਡ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀਕ 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਵਰਕ ਫॉर ਆਲ। ਵੈਕਸੀਨਸ ਵਰਕ ਫॉर ਆਲ। ਵੈਕਸੀਨਸ ਵਰਕ ਫॉर ਆਲ। ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਜੇ ਕੋਠਾਰੀ। ਸੰਜੇ ਕੋਠਾਰੀ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਸ਼ੋਕ ਲੇਲੈਂਡ ਲਿਮਿਟਿਡ ਬਾਏ 3.36% ਸਟੇਕ। ਅਸ਼ੋਕ ਲੇਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ 3.36% ਸਟੇਕ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਹਿੰਦੂਜਾ ਲੇਲੈਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਚੋਂ। ਹਿੰਦੂਜਾ ਲੇਲੈਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਲੇਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ 3.36% ਸਟੇਕ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ? 188 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ। 188 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਸਟੇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6.99%। ਟੋਟਲ ਸਟੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6.99%। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿੰਗਾਪੁਰਸ ਕੈਲੇਡੀਅਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਸਿੰਗਾਪੁਰਸ ਕੈਲੇਡੀਅਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਰੇਜ਼ਡ ਇਟਸ ਸਟੇਕ ਇਨ ਬੰਧਨ ਬੈਂਕ। ਬੰਧਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਕੈਲੇਡੀਅਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦਾ ਸਟੇਕ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ? 4.49%। 4.49%। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਧਨ ਬੈਂਕ ਦੇ CEO ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਘੋਸ਼। HDFC has acquired 6.43% stake। HDFC ਦੁਆਰਾ 6.43% ਸਟੇਕ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਚੋਂ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਚੋਂ 6.43% ਸਟੇਕ HDFC ਦੁਆਰਾ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ has launched a initiative serve the seniors initiative ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੁਆਰਾ for the senior citizens। Pakistan has recently hosted the SAARC Health Ministers Conference। SAARC ਦੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ। MP has launched ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫॉर ਅਰਬਨ ਵੂਮਨ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ₹11 ਟੂ ਈਚ ਮਾਸਕ ਦੇ ਮੇਡ ਐਟ ਹੋਮ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੂਮੈਨਸ ਦੁਆਰਾ ਅਰਬਨ ਵੂਮੈਨਸ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ₹11 ਦਾ ਮਾਸਕ
उन्होंने कहा गया कि मास्क बनवान तो ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 11 ਰੁਪੀਸ ਪਰ ਮਾਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ? ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ। ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ? MP। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ शिवराज सिंह चौहान। असम गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च धनवंतरी एप्लीकेशन। धनवंतरी एप्लीकेशन लॉन्च की गई असम गवर्नमेंट द्वारा। असम गवर्नमेंट द्वारा धनवंतरी एप्लीकेशन नूं लॉन्च किया गया टू डिलीवर मैडिसिन्स एट होम। मैडिसिन्स नूं घर तक डिलीवर करवाने के लिए। त्रिपुरा। त्रिपुरा बिकम्स थर्ड इन इंडिया आफ्टर गोवा एंड मणिपुर। गोवा और मणिपुर तो बाद त्रिपुरा थर्ड स्टेट बनी है। किस दे लई थर्ड स्टेट बनी है? यह बनी है थर्ड स्टेट टू बिकम कोरोना फ्री। कोरोना फ्री स्टेट बनी है त्रिपुरा, थर्ड स्टेट आफ्टर गोवा और मणिपुर, या कह सकते हैं सेकंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया आफ्टर मणिपुर। अ सीरीज लॉकडाउन लर्नर्स। लॉकडाउन लर्नर्स कीवर्ड रहेगा अपना लॉकडाउन लर्नर्स। लॉन्च की गई UNODC द्वारा। UNODC यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर ड्रग एंड क्राइम जिसका हैडक्वार्टर ऑस्ट्रीया के विच है। यह सीरीज शुरू की गई किस दे अंडर? एजुकेशन फॉर जस्टिस मिशन के अंडर। मिशन एजुकेशन फॉर जस्टिस के अंडर लॉकडाउन लर्नर्स नाम का एक सीरीज शुरू की गई UNODC द्वारा। UNODC की है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम जिसका हैडक्वार्टर कितने है? ऑस्ट्रीया के। कासोवाल ब्रिज कंस्ट्रक्टेड रिसेंटली ऑन रावी रिवर। रावी रिवर के उत्ते कासोवाल ब्रिज नूं कंस्ट्रक्ट किया गया। किहड़ी रिवर के उत्ते? रावी रिवर के उत्ते। सऊदी अरेबिया द्वारा अबोलिश की गई फ्लोगिंग एज अ पनिशमेंट। सऊदी अरेबिया द्वारा फ्लोगिंग नूं अबोलिश कर दिता गया, यानी कि फ्लोगिंग नूं बैन कर दिता गया। नैक्सट है अज की स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बारे डिस्कस कर रहे हैं। कैपिटल कोलकाता, लार्जेस्ट सिटी कोलकाता। कैपिटल कोलकाता और लार्जेस्ट सिटी है कोलकाता। 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 बनाया गया सी। चीफ मिनिस्टर ने इत्थे दे ममता बनर्जी। चीफ मिनिस्टर ने ममता बनर्जी। गवर्नर जगदीप धनकर। 23 डिस्ट्रिक्ट्स ने 42 लोकसभा सीट्स, 16 राज्यसभा सीट्स और विधानसभा दे विच ने 295 सीट्स। विधानसभा दे विच ने 295 सीट्स। बॉर्डर स्टेट्स की गल करिए झारखंड, बिहार, उड़ीसा, सिक्किम और असम। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, सिक्किम और असम यह स्टेट्स के नाल बॉर्डर शेयर करता है। इस तो इलावा कंट्रीज़ के नाल भी बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल 3 कंट्रीज़ के नाल बॉर्डर शेयर कर रहा है और 5 स्टेट्स के नाल झारखंड, बिहार, उड़ीसा, सिक्किम और असम। एरिया वाइज 13th रैंक है और पॉपुलेशन वाइज 4th रैंक है। लैंग्वेज की गल करिए इंग्लिश और बंगाली, 2 लैंग्वेजेस काफ़ी ज़्यादा वाइडली स्पोकन ने, लैंग्वेजेस इंग्लिश और बंगाली। स्टेट एनिमल की गल करिए फिशिंग कैट। स्टेट ट्री डेविल ट्री। वाइट थ्रोटेड किंगफिशर बर्ड है और फ्लावर नाइट फ्लोरिंग जैस्मीन। हावड़ा ब्रिज है हुगली रिवर के उत्ते। हुगली रिवर के उत्ते एक ब्रिज है हावड़ा ब्रिज, जिस रिवर के किनारे बसया हुआ है कोलकाता। जिसके उत्ते अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा है। ठीक है जी, याद रखना है। नैशनल पार्क्स की गल करिए सुंदरबन नैशनल पार्क, बक्सा नैशनल पार्क, न्योरा वैली नैशनल पार्क और जलादापरा नैशनल पार्क। सुंदरबन, बक्सा, न्योरा और जायदापरा। सुंदरबन, बक्सा, न्योरा और जायदापरा 4 इंपोर्टेंट नैशनल पार्क याद रखने ने वैस्ट बंगाल के। इस तो इलावा रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी सिचुएटेड है वैस्ट बंगाल के विच। रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड है वैस्ट बंगाल के विच। नैक्सट है अज की फर्स्ट न्यूज़ के वाल चलते हैं आप। फर्स्ट है कि विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड 82 मिलियन $। 82 मिलियन $। किहड़े बैंक द्वारा अप्रूव किए गए किस दे लई? हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए। हिमाचल प्रदेश
स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए 82 मिलियन US डॉलर अप्रूव किए गए। किहड़े बैंक द्वारा किए गए? इसनूं किया गया वर्ल्ड बैंक द्वारा, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल प्रदेश के रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 82 मिलियन US डॉलर प्रोवाइड किए। 82 मिलियन US डॉलर प्रोवाइड किए। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स की अगर आप गल करिए वर्ल्ड बैंक के बारे, वर्ल्ड बैंक के प्रेजिडेंट ने डेविड मलपास किन्नवें नंबर के? 13th नंबर के प्रेजिडेंट डेविड मलपास। वाशिंगटन DC के हैडकुआटर है 189 मैंबर कंट्रीज़ ने, 189 मैंबर कंट्रीज़ ने। सिमिलरली IMF की गल करिए वाशिंगटन DC के ही हैडकुआटर है 189 मैंबर कंट्रीज़ ने। बट इस द प्रेजिडेंट ने क्रिस्टलिना जॉर्ज, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। नेक्स्ट है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। मैट्रो मनीला फिलीपींस के हैडकुआटर है 68 मैंबर कंट्रीज़ ने। और मसत्सुगु आसाकावा इस दे हैड ने। NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक बेसिकली इस दे हैड ने KV कमाथ। हैडकुआटर किथे? हैडकुआटर इज द बीजिंग चाइना शंघाई दे विच। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हैडकुआटर किथे है? शंघाई दे विच। न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई दे विच हैडकुआटर है। इस तो इलावा KV कमाथ इस दे हैड ने। ECB की गल करिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक फ्रैंकफुर्ट जर्मनी दे विच। इस दा हैडकुआटर है और इस दे हैड ने क्रिस्टलिना लगाडे। यूरोपियन सेंट्रल बैंक क्रिस्टलिना लगाडे। नेक्स्ट है हु हैज़ लॉन्च ई कार्यालय ऐप फॉर द मूवमेंट ऑफ फाइल्स की मूवमेंट के लिए ई कार्यालय एप्लीकेशन लॉन्च की गई किस द्वारा? इसनूं लॉन्च किया गया बेसिकली लॉन्च किया गया CISF द्वारा, सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स 1969 दे विच बनाई गई सी। न्यू दिल्ली दे विच इसका हैडकुआटर है। ई कार्यालय ऐप CISF न्यू दिल्ली दे विच हैडकुआटर 1969 दे विच बनाई गई सी। हैड ने इसके राजेश रंजन इसके हैड ने। और इस तो इलावा इस बारे याद रखना है 2020 ਨੂੰ इसने ईयर ऑफ मोबिलिटी अनाउंस किया CISF ने। ईयर ऑफ मोबिलिटी याद होगा। ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस आप काफ़ी बार डिस्कस किए हैं। ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस तेलंगाना। ईयर ऑफ मोबिलिटी CISF। ईयर ऑफ नर्सिज एंड मिडवाइफ्स WHO द्वारा। ईयर ऑफ नर्सिज एंड मिडवाइफ्स। इस तो इलावा एक होर ईयर डिस्कस किया गया सी अपने नो व्हीकल डे ऑन एवरी फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर। हर मंथ इस साल के हर मंथ के पहले दिन नो व्हीकल डे ऑब्जर्व कौन किया? किस द्वारा? राजस्थान द्वारा। ये सारे फैक्ट्स याद रखने ने। इस तो इलावा ICG के चेयरमैन ने के नटराजन इस द डिप्टी इंस्पैक्टर जनरल ने नुपुर कुल श्रेष्ठा। NSG अनूप कुमार सिंह इज द डायरेक्टर जनरल ने। इंडियन आर्मी के हैड ने मनोज मुकुंद नरवाने। इंडियन एयरफोर्स के हैड ने RK सिंह भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इस तो इलावा इंडियन नेवी के भी याद रखने ने करणवीर सिंह इंडियन नेवी के हैड ने। बाय होम अ हाई प्रैशर वेंटीलेटर, एक हाई प्रैशर वेंटीलेटर लॉन्च किया गया वाइटल नाम का एक हाई प्रैशर वेंटीलेटर लॉन्च किया गया कोविड-19 के लिए एक हाई प्रैशर वेंटीलेटर लॉन्च किया गया किस द्वारा इसनूं लॉन्च किया गया? नासा द्वारा। नासा USA की स्पेस एजेंसी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा द्वारा वाइटल एक हाई प्रैशर वेंटीलेटर है लॉन्च किया गया कोविड-19 के लिए।
ठीक है जी, ये याद रख। इस तो इलावा अगर आप गल करिए यूएस, अच्छा नासा के हैड ने जिम ब्राइडस्टीन नासा स्पेस एक्स के नाल मिलके जिसके CEO ने एलन मस्क नाल मिलके एक मैंड फ्लाइट भेज रही है कि कदों मई दे विच एक मैंड मिशन भेजा जा रहा है नासा द्वारा। ठीक है जी, ये याद रखना है। इंपोर्टेंट फैक्ट्स की गल करिए जैक्सा है जापान की स्पेस एजेंसी, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जैक्सा। DRDO इंडिया की डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 1 जनवरी 1958 की गल करिए इसका फाउंडेशन डे है। इस तो इलावा हैडकुआटर इसका न्यू दिल्ली के विच है और जी सतीश रेड्डी इस दे हैड ने, जिन्होंने प्राइज़ दिता गया सी मिसाइल सिस्टम अवार्ड दिता गया सी यूएसए द्वारा मिसाइल सिस्टम अवार्ड DRDO के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी नूं दिता गया सी। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है। इस तो इलावा के सिवान इस दे हैड ने। करनाटका बेंगलुरु करनाटका दे विच हैडकुआटर है। ठीक है जी, और इसरो बनाई कदों गई सी 15 अगस्त 1969 दे विच। विच स्टेट इज गोइंग टू यूज कर्मी बोट और नाइट एंगल 19 कर्मी बोट या कह सकते हैं नाइट एंगल 19 रोबोट्स टू प्रोवाइड फूड एंड मेडिसिन्स। कोविड-19 पेशेंट्स नूं फूड एंड मेडिसिन्स प्रोवाइड करवाने के लिए एक रोबोट जिसनों कर्मी बोट या फिर मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स दे विच कर्मी बोट और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स दे विच नाइट एंगल 19 नाम का रोबोट शुरू किया गया। ठीक है, किस दे लई कोविड-19 के पेशेंट्स नूं फूड एंड मेडिसिन्स प्रोवाइड करवाने के लिए किन्ना द्वारा किया गया? इसनों किया गया केरला द्वारा। केरला के हॉस्पिटल्स दे विच इसनों शुरू किया गया, केरला के हॉस्पिटल्स दे विच इसनों शुरू किया गया। ठीक है जी, ये याद रखना है। अच्छा, इस तो इलावा आप डिस्कस किया सब तो पहले जो शुरू किए गए थे राजस्थान के सवाई मान सिंह हॉस्पिटल्स, रोबोट्स का यूज सवाई मान सिंह हॉस्पिटल जिहड़ा कि जयपुर राजस्थान के है इत्थे शुरू किए गए थे। ठीक है जी, ये याद रखने ने। और छत्तीसगढ़ के एक स्टूडेंट द्वारा भी एक इंजीनियर स्टूडेंट आप नाम डिस्कस किया, उस द्वारा भी रोबोट्स की शुरुआत की गई सी। उन्होंने भी रोबोट डेवलप किया अपनी स्टेट के लिए, ये याद रखना है। अच्छा, इस तो इलावा कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करिए। सब तो पहले केरला, पिनराई विजयन चीफ मिनिस्टर ने इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया सी ब्रेक द चेन। केरला द्वारा नमस्ते ओवर हैंडशेक कैंपेन। छत्तीसगढ़ डिजिटल स्टेट्स ऑफ इंडिया रैंकिंग दे विच टॉप किया सी छत्तीसगढ़ ने। राजस्थान के जयपुर नूं नो कंस्ट्रक्शन जोन डिक्लेयर किया गया सी। इस तो इलावा गोवा की गल करिए, फर्स्ट स्टेट बनी है जिसने अनाउंस किया अपने आप को कोरोना फ्री स्टेट। फर्स्ट स्टेट केड़ी बनी है? गोवा। Which of the following country has named first Mars mission to be launched in 2020 as Taiwan 1? एक कंट्री द्वारा अनाउंस किया गया Taiwan 1 कि वह अपना फर्स्ट मार्स मिशन भेजेगी 2020 के विच ही, जिसका नाम होएगा Taiwan 1। केड़ी कंट्री द्वारा अनाउंस किया गया? यह किया गया चाइना द्वारा अनाउंस किया गया कि वह अपना फर्स्ट मार्स मिशन भेजेगी 2020 के विच, जिसका नाम उन्होंने रखा Taiwan 1। इस तो इलावा कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स अगर आप डिस्कस करिए, चाइना कैपिटल बीजिंग है और करंसी इत्थे युआन चलती है। जापान की गल करिए, जापान के बारे टोक्यो ओलंपिक्स 2021, टोक्यो ओलंपिक्स जापान कैपिटल टोक्यो, करंसी इत्थे येन चलती है और 2021 टोक्यो ओलंपिक्स हैल्ड किए जाएंगे जापान के विच, जिसके मैस्कोट्स इंपोर्टेंट बनते हैं। मैस्कोट्स ने मिराई तोबा और सो माइटी।
टोक्यो ओलंपिक्स से मिराई तोबा और सो माइटी है टोक्यो पैरा ओलंपिक्स। 2022 बीजिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ओलंपिक्स किए जाएंगे जिसनों विंटर ओलंपिक्स चाइना बीजिंग ਦੇ ਵਿੱਚ। 2024 फ्रांस ਦੇ ਵਿੱਚ समर ओलंपिक्स 2024 फ्रांस पेरिस। 2026 इटली विंटर ओलंपिक्स 2026 इटली ਦੇ ਵਿੱਚ। 2028 USA 2028 USA ਦੇ ਵਿੱਚ समर ओलंपिक्स। इस तो इलावा रशिया की गल करिए, रशिया के प्राइम मिनिस्टर याद रखने ने मिखाइल मिशुस्तिन रिसेंटली अपॉइंटेड ने याद रखने ने। इस तो इलावा रशिया आइबा का टूरनामेंट होस्ट करेगी। रशिया के चैस ओलंपियाड भी हैल्ड किया गया। 44th चैस ओलंपियाड कितने हैल्ड किया गया सी? रशिया के मॉस्को के विच। नेक्स्ट है नेम द इंस्टीट्यूट हु टॉप्ड अमंग इंडियन इंस्टीट्यूशंस इन टाइम्स हायर एजुकेशन सेकंड एडिशन ऑफ इंपैक्ट रैंकिंग्स 2020। बेसिकली द इंडेक्स कहा जाता है इसनूं टाइम्स हायर एजुकेशन जिहड़ा इंपैक्ट रैंकिंग्स का सैकेंड एडिशन है इसनूं जिहड़ा शो किया गया इंडिया का इस रैंक आया। बेसिकली इंडिया की जिहड़ी रैंकिंग जिसने टॉप किया है वह है 57th नंबर से। ग्लोबली वह 57th नंबर से है। अगर आप गल करिए ग्लोबली वह 57th नंबर से है और इंडिया के उसने टॉप किया है। किहड़ी है? IIT खड़गपुर। किस दोबारा? IIT खड़गपुर दोबारा। IIT खड़गपुर ने टाइम्स हायर एजुकेशन नूं जिहड़ी कि सैकेंड एडिशन है इंपैक्ट रैंकिंग्स 2020 का इसनूं लॉन्च किया, इसनूं टॉप किया है। ठीक है जी। और इस इंडैक्स के अगर आप टॉप की गल करिए ओवरऑल ग्लोबली टॉप की गल करिए तो यूनीवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड द्वारा टॉप किया गया जिहड़ी कि न्यूजीलैंड के विच है। यूनीवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड द्वारा टॉप किया गया जिहड़ी कि न्यूजीलैंड के विच है। बाकी ऑप्शन की गल करिए IIT बॉम्बे द्वारा आप काफ़ी बार डिस्कस किया है IS सिंक एक डिजिटल स्टैथोस्कोप लॉन्च किया गया IIT बॉम्बे द्वारा। गांधीनगर द्वारा प्रोजेक्ट आईसैक IIT गांधीनगर द्वारा प्रोजेक्ट आईसैक लॉन्च किया गया IIT गांधीनगर द्वारा। IIT रुड़की द्वारा दो चीज़ां की गई। सब तो पहले 3D मास्क बनाया गया IIT रुड़की द्वारा। इस तो इलावा IIT रुड़की ने किस दे नाल मिलके एम्स ऋषिकेश के नाल मिलके एक चीज़ डेवलप की जिहड़ी कि वेरी इंपोर्टेंट है वेंटीलेटर्स। कमेंट बॉक्स में दसना है किस नाम दे। नेक्स्ट है सना मरीन अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? सना मरीन एक प्लेयर से क्रिकेट के जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की कि वह इंटरनेशनल क्रिकेट तो रिटायरमेंट ले थे। ये किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं पाकिस्तान तो। किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान तो। अच्छा, पाकिस्तान बारे एक न्यूज़ होर डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के बारे ही पाकिस्तान क्रिकेट के विचों सना मरीन ने रिटायरमेंट अनाउंस की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा PCB की गल करिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा एक प्लेयर नूं 3 साल के लिए बैन किया गया। 3 साल के लिए बैन किया गया। उन्हों का नाम है उमर अकमल नाम के प्लेयर नूं पाकिस्तान द्वारा बैन किया गया। इस तो इलावा ICC के कुछ इवेंट्स की गल करिए। रिसेंटली 2 इवेंट्स हैल्ड किए गए हैं। सब तो पहले ICC T20 वर्ल्ड कप की गल करिए। T20 वर्ल्ड कप 2 तरीके का होना है, मेंस और वूमेंस। ठीक है जी। मेंस वाला होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। वूमेंस वाला होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया। वूमेंस वाला हो चुका है, मेंस वाला हजे होना है, वूमेंस वाला हो चुका है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा होस्ट किया गया। ऑस्ट्रेलिया द्वारा ही जीते गया इंडिया नूं हरा के।
ठीक है। ICC T20 वर्ल्ड कप की गल करिए मैनस और वूमेंस, मैनस वाला ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा, वूमेंस वाला भी ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। वूमेंस मैनस वाला अजे पेंडिंग है, वूमेंस वाला हो चुका है, जिस ऑस्ट्रेलिया द्वारा जितया गया इंडिया नूं हरा के, ऑस्ट्रेलिया द्वारा जितया गया इंडिया नूं हरा के। सिमिलरली ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है। हिंट दे देना कि यह दो ऑप्शंस ने, जिस दे विचों एक प्लेस है जिस दे विच हैल्ड किया गया और दूजी प्लेस है जिस दे विच जितया गया। की होया कि ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका दे विच हैल्ड किया गया, होस्ट कंट्री साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश द्वारा जितया गया, किसनों हरा के, फिर इंडिया नूं हरा के। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये दोनों याद रखने ने। इंडिया सेंट 50,000 सर्जिकल ग्लव्स, इंडिया ने 50,000 सर्जिकल ग्लव्स नूं बेचा भेजा 1 लाख टैबलेट्स दे नाल। किहड़ी टैबलेट्स? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन 1 लाख टैबलेट्स और 50,000 सर्जिकल ग्लव्स किहड़ी कंट्री नूं भेजे? इंडिया ने यह भेजे बांग्लादेश नूं। रिसेंटली अगर आप गल करिए 50,000 सर्जिकल ग्लव्स और 1 लाख टैबलेट्स ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन किहड़ी कंट्री नूं दित्ते ने? बांग्लादेश नूं, ठीक है जी, याद रखना है। अच्छा, इस तो इलावा बांग्लादेश कैपिटल ढाका, करेंसी टका। मालदीव्स के बारे याद रखना है, ऑपरेशन संजीवनी के अंडर इंडिया ने मेडिसिन मालदीव्स नूं भी भेजियां सी, मालदीव्स नूं मेडिसिन भेजियां सी इंडिया ने ऑपरेशन संजीवनी के अंडर। करेंसी कैपिटल इत्थे माले है, मालदीव्स कैपिटल माले और करेंसी इत्थे रुपया चलती है। मडागास्कर नूं ऑपरेशन वनीला के अंडर, ऑपरेशन वनीला लॉन्च किया गया सी मडागास्कर दे लई। इत्थे जिहड़ी साइक्लोन करके प्रॉब्लम्स आई सी उसदे लई ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए ऑपरेशन वनीला लॉन्च किया सी, इंडिया द्वारा ऑपरेशन वनीला लॉन्च किया गया सी मडागास्कर के लिए। मडागास्कर कैपिटल है एंटानारिवो, मडागास्कर कैपिटल एंटानारिवो। सऊदी अरेबिया कैपिटल रियाद, करेंसी रियाल चलती है। फ्लॉगिंग बारे इत्थे आपां ने हुणे डिस्कस किया कि फ्लॉगिंग नूं बंद किया गया। सूडान की गल करिए, सूडान के बारे आप डिस्कस किया सी कल भी, दोबारा रिवाइज करने के लिए इत्थे ऑप्शन के रखे गए। सूडान और साउथ सूडान दो डिफरेंट कंट्रीज ने, सूडान और साउथ सूडान। साउथ सूडान कैपिटल जूबा और सूडान कैपिटल है खरोतूम। ये कन्फ्यूज नहीं होना कि सूडान कैपिटल है खरोतूम और साउथ सूडान कैपिटल है जूबा। नेक्स्ट है, विद विच कंट्री एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद RBI फॉर करेंसी स्वैप वर्थ USD 400 मिलियन टू बूस्ट द फॉरेन करेंसी रिजर्व। एक कंट्री द्वारा RBI के नाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया, किस दे लई? करेंसी स्वैप। बेसिकली कि RBI द्वारा डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी नूं स्टोर करके रखा जाता है डिफरेंट एग्रीमेंट्स के लिए, ठीक है, ताकि उस कंट्री नूं उसे उन्हां दी करेंसी दे विच अमाउंट दित्ती जा सके। तो एक कंट्री द्वारा एग्रीमेंट साइन किया गया 400 मिलियन US डॉलर के लिए, 400 मिलियन US डॉलर के लिए करेंसी स्वैप के लिए। किहड़ी कंट्री ने एग्रीमेंट साइन किया? RBI दे नाल श्रीलंका द्वारा। श्रीलंका द्वारा RBI के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया 400 मिलियन US डॉलर करेंसी स्वैप के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ RBI बनाया गया सी 1 अप्रैल 1935। रिसेंटली इसने 85th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की अपनी। शक्तिकांत दास इत्थे दे गवर्नर ने। डिप्टी गवर्नर्स इस टाइम 3 ने, जिस दे विचों NS विश्वनाथन द्वारा रिजाइन किया गया सी। इस टाइम माइकल डी पात्रा, MK जैन और BP कनुगो। माइकल डी पात्रा, MK जैन और BP कनुगो 3 इत्थे डिप्टी गवर्नर्स ने, जिस दे विचों BP कनुगो नूं रिसेंटली 1 साल की एक्सटेंशन दी गई है। ऑप्शंस की गल करिए, विजिट टू नेपाल ईयर 2020 कैंपेन काफ़ी बार डिस्कस किया आपने, नेपाल द्वारा शुरू किया गया। नेपाल के प्रेजिडेंट विद्या देवी भंडारी द्वारा बेसिकली इसनूं शुरू किया गया सी।
प्राइम मिनिस्टर भी याद रखने ने इत्थे दे KP शर्मा ओली, KP शर्मा ओली। अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ घनी, अशरफ घनी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने। कैपिटल इत्थे काबुल है। ओमान, ओमान कैपिटल मस्कट, ओमान कैपिटल मस्कट। करंसी इत्थे रियाल चलती है। पेरू, पेरू कैपिटल की है? पेरू कैपिटल है लीमा, पेरू कैपिटल लीमा। करंसी सोल चलती है। पेरू कैपिटल लीमा, करंसी इत्थे सोल चलती है। अ स्कीम ऑफ जीरो इंटरस्ट लोन फॉर वूमेन सैल्फ हैल्प ग्रुप्स, एक स्कीम लॉन्च की गई जीरो इंटरस्ट लोन, जीरो इंटरस्ट लोन किस दे लई? वूमेन सैल्फ हैल्प ग्रुप्स के लिए, वूमेन सैल्फ हैल्प ग्रुप्स के लिए जिस दे अंडर वो लोन लै सकते हैं 40,000 का, 40,000 रुपीज़ का लोन लै सकते हैं एक साल दे विच। एक साल के लिए 40,000 रुपये का लोन लै सकते हैं। इस स्कीम नूं लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश द्वारा। YS जगमोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर ने इत्थे दे, इन्हां द्वारा इस स्कीम नूं लॉन्च किया गया। स्कीम का नाम है YSR जीरो इंटरस्ट लोन, YSR जीरो इंटरस्ट लोन। वूमेन सैल्फ हैल्प ग्रुप्स के लिए याद रखना है 40,000 रुपीज़ एक साल के लिए लोन लै सकते हैं। किन्हां द्वारा? आंध्र प्रदेश द्वारा। बाकी ऑप्शंस की गल करिए, असम सर्बानंद सोनोवाल और जगदीश मुखी। सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर ने, जगदीश मुखी इत्थे दे गवर्नर ने। हरियाणा, हरियाणा मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर इत्थे दे चीफ मिनिस्टर ने और इत्थे दे गवर्नर ने सत्यादेव नारायण आर्य, सत्यादेव नारायण आर्य। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान और इत्थे दे गवर्नर ने, इत्थे दे गवर्नर कौन है? लालजी टंडन, लालजी टंडन। गुजरात, गुजरात बारे हमेशा याद रखना है COP13 कॉन्फ्रेंस। सब तो पहले COP13 कॉन्फ्रेंस गांधीनगर गुजरात दे विच, जिसका मैस्कोट रहा सी गीबी, जिसका मैस्कोट रहा सी गीबी। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द मैस्कोट रहा सी, याद रखना है। विच स्टेट या यूनिवर्सिटी, विच स्टेट यूनिवर्सिटी बिकम्स फर्स्ट इन कंट्री टू लॉन्च प्लाज्मा थेरेपी सक्सैसफुली फॉर ट्रीटिंग COVID-19 पेशेंट्स। COVID-19 पेशेंट्स नूं ट्रीट करने के लिए बेसिक कोई मेडिसिन तो है नहीं है, इसलिए एक थेरेपी लॉन्च की गई है प्लाज्मा थेरेपी, एक स्टेट की यूनिवर्सिटी द्वारा जिसने इसनूं सक्सैसफुली लॉन्च किया है। बेसिकली सब तो पहले आप डिस्कस करते हैं प्लाज्मा थेरेपी की है। प्लाज्मा थेरेपी है कि अगर एक पर्सन है, इसनूं COVID-19 है, ठीक है, इसने किसी तरीके नाल इसनूं रिकवर कर लिया तो हुण ये प्रॉपरली ठीक हो चुका है COVID-19 तो, ठीक है। हुण जिहड़े दूजे परसनस ने जिन्होंने COVID-19 है तो उसनूं इस परसन का बॉडी ब्लड प्लाज्मा, अगर ब्लड प्लाज्मा की गल करिए, ब्लड दे विच डिफरेंट पिगमेंट्स होंदे ने। अगर किसी ने बायोलॉजी पढ़ी होवे, प्लाज्मा नाम का जिहड़ा पिगमेंट होंदा ब्लड का, उसनूं इस दे विच इन्हां दे ब्लड दे विचों की किया जाएगा, इन्हां दे विच ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि एंटीबॉडीज़, इस परसन की एंटीबॉडीज़ इन्हां दे विच ट्रांसफर की जाएगियां, जिस नाल यह परसन भी रिकवर कर लैणगे। इसनूं कहा गया प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी। इसनूं शुरू किया गया किहड़ी स्टेट की यूनिवर्सिटी द्वारा? इसनूं किया गया उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी द्वारा। अगर आप यूनिवर्सिटी का नाम डिस्कस करिए तो यूनिवर्सिटी का नाम है किंग जॉर्ज मैडिकल यूनिवर्सिटी, किंग जॉर्ज मैडिकल यूनिवर्सिटी। इन्हां दा गवर्नमेंट हॉस्पिटल यूपी का एक इंपोर्टेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इन्हां द्वारा प्लाज्मा थेरेपी नूं सक्सैसफुली यूज किया गया। किंग जॉर्ज मैडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। उड़ीसा, अच्छा यूनिवर्सिटी तो याद आया, उड़ीसा के बारे में इसलिए इतने रखे है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैल्ड किए गए। उड़ीसा के भुवनेश्वर दे विच खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैल्ड की गई, जिसकी ओपनिंग सैरेमनी हैल्ड की गई कटक दे विच, ओपनिंग सैरेमनी कटक दे विच, और ईवेंट्स हैल्ड किए गए भुवनेश्वर दे विच, ईवेंट्स हैल्ड किए गए भुवनेश्वर दे विच, जिस दे विच मैडल टैली नूं टॉप किया पंजाब की यूनिवर्सिटी ने, पंजाब की यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मैडल टैली ਨੂੰ टॉप किया 47 मैडल्स ਦੇ ਨਾਲ आई थिंक 47 मैडल ਸੀਗੇ। उस तो बाद सैकेंड प्लेस ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਵਿਤਕਾਰੀ ਫੂਲੇ पुणे यूनिवर्सिटी, ਸਰਵਿਤਕਾਰੀ फूले पुणे यूनिवर्सिटी सैकेंड प्लेस ਤੇ। और थर्ड प्लेस ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला थर्ड प्लेस ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ। ठीक है जी, ये याद रखने। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ द ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।